वेलकम टू एवरीवन। आई एम नवदीप कौर और नव क्लासेस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है प्रांजल। एंड प्रांजल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनका रिसर्च पेपर यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हुआ है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू प्रांजल मैम। जी। थैंक यू मैम। जी। सो प्रांजल, आप अपनी ये जो रिसर्च पेपर है, आज हम आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे लिखा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जर्नी भी आपका देखते हैं कि आपने नव क्लासेस से यूजीसी नेट का रिसर्च का कोर्सेज भी लिया है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। ओके मैम। मैम एक्चुअली माय नेम इज प्रांजल मिश्रा, आज आपने बोला ही। एंड आई हैव डन एमएससी फ्रॉम बीएचयू इन बायोस्टैटिस्टिक्स। ओके, बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड yes, after completing my MSc, I went for internship in Delhi, and I joined ICMR National Institute of Medical Statistics. So ओके। in starting, I have decided my topic my topic was violence in UP. So I just start working on that topic, and after some time, sir, my mentor says that do it properly and we publish your paper. So on that moment, I become serious, and I then means I can say that after doing that paper, I able to know what is research means. Before doing that paper, I was not very interested in research work means, and after that paper, I was very interested in research, and and I worked with like my I would like to say my mentor name three sirs like Jiten sir, Krishna Kumar Bhaiya, and Jitendra Yadav sir. All of three helped me a lot and support during my whole internship and in paper publication. And the things were like that. I was very deliberately want to know something, and they were very interested that they want that if I very interested in know, then they want to teach me and learn me how to do the things. And slowly I do that paper means when I go for checkup the means when I complete my paper according to me, and I went to sir, and sir, my paper is okay, then sir check and say no, means you correct, again you write, means you are not written in the format where we can go for publication. Then one time, two times, three, I think 8 to 10 times I have written that paper. 10, 12 times, then sir said now it can be published. So actually, when I went to sir for my paper checking, then when I in my mind there was one question that I also thought that also thought that sir reject my paper, and I was much interested to write paper again and again, because in every time I was learning many things when I was writing the paper. So I also want to sir reject my paper, and I get one more chance to write. And because my internship time was 3 months, but sir allowed me like 4 5 months. I stayed there and complete my paper. So I also invest some time in that paper, and I learned many things from that paper, how to do research, and interested too much in research work. And after that paper completed, I decided to go for net. That was the like what is the paper for me, I can say. And after completing my MSc, after 1 year, I decided to go for net PhD. ओके। So it was not a simple decision. Means if you not if you didn't try in MSc or PG, and after 1 year, if you think to go for PhD, then it's not a simple. But I but continuously I did hard work, and in 24 March I started my preparation for net UGC net. And paper one paper two was means in MSc I studied some portion. It was quite easy, but paper one was very difficult. So I was thinking how I will study paper one, but I joined ma'am your channel and some videos from YouTube. Then I know. Then I think ma'am will teach good. Then I joined your uh, apps. I mean, I take your classes, online classes, यस। and I paper one. Ma'am, actually, people think that paper one is easy, but no, I think paper one is tough, because paper two we can study by ourselves, and in our MSc or PG we study, but paper one, like we say, then means if we go through chapter, then we say like teaching, research, and communication, environment, logic. It's all easy,
but it's not easy. We can say na, in childhood we have studied environment या or ICT or mathematical reasoning, we can say कि like हो जाएगा, कुछ है नहीं. But paper one is most difficult than paper two. So if I can say that if we have completely studied paper two, then every time we can do 60 to 70 question. Every time it's we can do, but we cannot solve for paper one. Like so paper one is most difficult and focusing. If, who are going to prepare for UGC NET. Yes, that is why you need guidance and you need continuous. यस यस. पेपर टू मैम बोल सकते हैं पेपर टू में कि हमने एमएससी में पढ़ा हुआ होता है और हमें कुछ आते हैं तो पढ़ सकते हैं. पेपर टू से देख के तो बहुत आसान लगे, सिंपल लगेगा कि ये है इन्वायरमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है. बट अगर इतना सिंपल होता है तो हर लोग 40 to 45 क्वेश्चन अगर वहां से कर लेते तो फिर आप बाकी पेपर में आप जो आपका मेन पेपर है वहां से आप 70-75 कर ले जाओगे, 60-70 क्वेश्चन तो आपके जीआरएफ सबके हो जाने चाहिए थे फिर. बट वो जो गेम है वो पेपर वन का है. हाँ. एंड in paper one there are many common topic in paper one, paper two. So if you go through for paper one, then 25 to 30% I think it will also cover paper one for some subject. Like in my subject is population study, so 20 to 25 is cover paper two, paper one. जी जी, वेरी नाइस. सो हाँ जी, एंड नाउ कम टू रिसर्च. ठीक है. Yes, ma'am. यस. सो Ma'am, actually, I want to say that practically I learned research in my internship, but theoretically I learned from you what is research and what's basics of research. सो Ma'am, I प्रांजल. want to हाँ. teaches many. You teach a very good research methodology. I have much interest in always to teach you to study your subject research methodology and all the things you teach it very clearly. जी, थैंक यू. सो नाउ प्रांजल सेज कि जैसे उन्होंने अभी रिसर्च का पेपर का बताया कि उनका ऐसा, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जब हम रिसर्च लिखते हैं ना तो पहले हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट व्हेन वी गेट द गाइडेंस देन वी गेट टू नो कि भाई हमारी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और एक्चुअली हमें ये सारी चीजें भी सीखनी है जो कहीं ना कहीं सीख के और बेटर होती हैं. और अगर अपने बेसिक्स अगर अच्छे से क्लियर हो तो और भी ज्यादा अच्छा हम वर्क कर सकते हैं. जैसे कि आपने कहा भी रिसर्च प्रपोजल वाले कोर्स से आपके बेसिक्स और जो वो चीजें वो ज्यादा अच्छी रिफाइन हुई है ना. और बाकी अपना जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो अपने अपनी जो इंस्टीट्यूशन मतलब कि क्या कहते हैं इंटर्नशिप से किया था तो वहां से आपको हेल्प मिला. राइट. Yes, सो ma'am. दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है. अब Yes, ma'am. आप अपना जो पेपर आपने लिखा और उसको पब्लिश कराया यूजीसी केयर लिस्टेड में, तो आप एक बार स्टूडेंट्स को उसके गाइडेंस दे सकते हैं कि उसमें एक्चुअली हमने क्या ढूंढा और क्या फाइंडिंग निकल के आई, सो दैट इफ अदर वांट टू डू इन देयर फील्ड दे विल गेट सम Yes, आइडियाज. ma'am. Ma'am, my research topic identification of hotspot clustering of intimate partner violence, physical violence, sexual violence, and emotional violence, and weightage logistic regression among the districts of यूपी. एक्चुअली मैम हमने पेपर में वायलेंस को यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में वायलेंस को देखा है. जी. लाइक कि यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितना वायलेंस है और क्यों है. तो हम ओके. गवर्नमेंट को सजेशन दिए हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस है और क्यों किस फैक्टर्स वजह से है. तो गवर्नमेंट वहां जाए उस जगह पे और उस फैक्टर को रिड्यूस करे और उस फैक्टर को कम करके वायलेंस वहां पे कम किया जाए. तो हमने अपने पेपर में बाईवेरिएट यूनिवेरिएट किया है, बाईवेरिएट किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया है. तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं. तो सबसे पहले हमने प्रीवलेंस निकाला है. लाइक हमने हमें जब भी रिसर्च करना होता है तो हम एक रिग्रेशन मॉडल अपने मींस हमने एक रिग्रेशन मॉडल लिया हुआ है, y इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1x बीटा 1x2. तो हमने 8 प्रिडिक्टर वेरिएबल लिया है, 8 प्रिडिक्टर वेरिएबल एंड हम 4 डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पेपर में. तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस. और यहाँ पे हमने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया है. लाइक हमारे पास 2 आउटकम्स है, बाइनरी है, मीन्स अगर वायलेंस हो रहा है तो हमने कोड किया 1 है और नहीं हो रहा तो 0 है. तो यहाँ फिर हमने सबसे पहले तो प्रिविलेंस देखा है. हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रिविलेंस कितना है हर एक वायलेंस के रिस्पेक्ट में. लाइक हमने जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, हमारा प्रिडिक्टर वेरिएबल है वुमेन एज. तो हमने देखा है वुमेन की जो एज है 18 टू 49 मैंने पेपर में लिया है. तो हमने देखा 18 टू 24, 24 टू 29, 29 टू 34, ऐसे 5 ईयर डिफरेंस हमने एज लिया है. तो हमने देखा है कि इस एज में फिजिकल वायलेंस कितने का प्रपोर्शन क्या है, फिर इमोशनल का क्या प्रपोर्शन है, सेक्सुअल क्या प्रपोर्शन है. फिर इसके बाद हमने एसोसिएशन देखा है, काई स्क्वायर. मैम आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती भी है काई स्क्वायर. तो काई स्क्वायर से बेसिकली हम एक होता है मैम, मैं यहाँ पे शायद मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ लोग क्लियर हो जाए. एक काई स्क्वायर होता है और एक
एक होता है हमारा एसोसिएशन, एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्ट्रेंथ। तो जो काई स्क्वायर होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एसोसिएशन बताता है। जैसे हमारा वुमेन एज है या हस्बैंड का ड्रिंकिंग नेचर है। तो हाँ। और इससे हम देखना चाहते हैं वायलेंस, जैसे फिजिकल वायलेंस। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हस्बैंड जो है अगर ड्रिंक करता है तो इससे वायलेंस इससे रिलेट करता है कि नहीं, तो ये हम काई स्क्वायर से देखेंगे, क्योंकि एसोसिएशन काई स्क्वायर बताएगा। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हाँ, हस्बैंड के ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग से वायलेंस तो है, बट ये हो सकता है बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो। तो काई स्क्वायर का काम है एसोसिएशन बता देना। बट ये कितना ज्यादा कितना कम है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें ऑड्स रेशियो बताता है। इसके लिए हमने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज किया है। तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके हमने उसका एसोसिएशन तो हमने कई स्क्वायर बताया, फिर हमने उसका स्ट्रेंथ लॉजिस्टिक बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो कि ऑड्स रेशियो और उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देता है, तो उससे हमने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सही। मैम हम जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं तो उसमें बेसिकली हम करते क्या है, हमारे जो भी प्रेडिक्टर वेरिएबल होते हैं उसमें से हम एक को बेस ले लेते हैं, और उस बेस के कंपेयर में जो बाकी जो और कैटेगरी होती है प्रेडिक्टर वेरिएबल की, उनमें देखते हैं कितना वैलेंस ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। मेरे एक वेरिएबल हो गया वुमेन का एज ही हो गया, जैसे 18 टू 49, 18 टू 24, 24 टू 29, 29 टू 34। तो यहाँ पे अब हम देखना चाहते हैं ऑड्स रेशियो। अगर अगर यहाँ पे हमारे काई स्क्वायर ने बता दिया है कि ये जो वुमेन का एज है ये फिजिकल वायलेंस से अगर एसोसिएटेड है, तो फिर हम और तो हम फिर मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करेंगे और स्ट्रेंथ देखने के लिए। मैं देखने तो तो फिर हम जब बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे, तो फिर जैसे हमने यहाँ पे एक बेस लेंगे, बेस होगा जैसे वुमेन का कोई एक एज ग्रुप ले लेंगे, जैसे हमने 18 टू 24 ले लिया, तो हम ये देखेंगे इस 18 टू 24 के कंपेयर में बाकी जो कैटेगरी है उनमें कितना बैलेंस है। अगर 18 टू 24 को वन ले लेंगे, इसको वन लेंगे, और अगर हम 18 टू 24 हमने वन लिया है और बाकी हमारे जो एक कैटेगरी है 24 टू 29, तो यहाँ पे अगर वायलेंस हमारे आउट रेशियो अगर हमारा 0.65 आ रहा है, तो हम इसमें इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि वुमेन की जो वुमेन की एज 18 टू 24 है उनके कंपेरिजन में जो वुमेन 25 टू 29 है उनमें अगर हमने 0.65 आया है, तो हम बोलेंगे 35% कम वायलेंस हो रहा है। तो ये ऑड्स रेशियो का इंटरप्रिटेशन होता है। जी। तो मैम फिर से बाद हमने यही हमने किया है, GWLR यूज किया है, जो हॉटस्पॉट क्लस्टरिंग देखा है ऑड्स रेशियो का, कि कहाँ पे किस स्टेट्स में ज्यादा हो रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जाए उसको कम करे। तो पूरा मेरा पेपर इस पे ही बेस्ड है। सो इस पेपर का आपने जो डाटा कलेक्शन किया है वो किस तरीके से किया है? सेकेंडरी डेटा NFHS 5 से डेटा हमने लिया है, सेकेंडरी। 19 to 20। अच्छा। हाँ, सेकेंडरी डाटा है मैम। जी। सो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल था ये? इसमें NFHS की वेबसाइट पे मिल जाएगा ये डेटा। एनएचएस की, ठीक है। सो थैंक यू प्रांजल जी, आपने बहुत अच्छे से अपना जो पेपर है और उसकी वर्किंग है एनालिसिस पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एंड यस मैम। और कोई सजेशन आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं रिसर्च पेपर्स के लिए, कॉन्फिडेंस वगैरह? इसमें रिसर्च पेपर करने के लिए अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको एक होता है कि हम पढ़ते हैं, एक होता है पढ़ना, एक होता है लिविंग विथ स्टडी, पढ़ने के साथ जीना। तो अगर रिसर्च में आना है तो आप पढ़ के नहीं कर सकते, आपको लिविंग विथ स्टडी करना होगा, पढ़ाई को जीना होगा बस। उसके अलावा आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ेंगे मैं कोई भी पढ़ेगा तो 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन अब आप अगर रिसर्च में आ रहे हैं तो आपको अपनी पूरी लाइफ उसमें देनी होगी, पूरी लाइफ रिसर्च हो जाएगी फिर। तो आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना होगा, फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए एक जस्ट लाइक गेम हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। हम्म। फिर आपको बोरिंग या फिर आपको एक बार हार्ड वर्क करना होगा रिसर्च के लिए, उसके बाद वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगेगा करने में। तो एक बार आप कर लेंगे तो पूरी लाइफ फिर उसको आप इंजॉय करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सबको करना चाहिए, और ये आपको एक अच्छे पोजीशन पे ले जाएगा, आपको प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट बहुत अच्छा कुछ बना सकता है। तो जी। आपको हार्ड वर्क करके यहाँ से निकल जाना होगा। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ हाईलाइट कर दूं, कुछ बच्चे मुझसे अभी ग्रुप में पूछ रहे थे तो मैं अभी बता दूं कि वो कह रहे थे कि क्या पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ही रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। प्रांजल जी ने ये रिसर्च पेपर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही पब्लिश किया है, अभी पीएचडी में ही इज एस्पायरिंग कि आगे एडमिशन हो जाए। और मैंने खुद भी रिसर्च पेपर अपना पीएचडी के दौरान ही किया था। तो प्रांजल, इस बारे में आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि अभी भी पब्लिश हो सकता है, देख लीजिए।
यस मैम, ऐसा नहीं कि आप पीएचडी कर रहे हैं तभी कभी कर सकते हैं। आपने अगर पीएचडी नहीं भी किया है, आपको इंटरेस्टेड है मैम, सबसे मेन इशू आपको इंटरेस्ट होना चाहिए पीएचडी रिसर्च पेपर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने रिसर्च पेपर को लिख के अच्छे जर्नल में पब्लिश करा सकते हैं। यस, ठीक है। और थैंक यू प्रांजल, फाइनली आपका आपने थैंक इतना टाइम दिया मुझे। ठीक है। यू एंड मैम। जी, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, एंड आपकी लाइफ के सक्सेस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशंस के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक स्टेप अब थैंक यू आगे मैम। चले गए हो, आपका ये एपीआई स्कोर में जरूर जुड़ेगा, आपने मेरे से पूछा था। यस, यस। इट विल कम। आपको 10 पॉइंट्स मिल गए हैं यूजीसी के ओके मैम, थैंक पब्लिश होने के। ठीक है, क्योंकि पेपर से यू। प्रेजेंट करते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं, लेकिन पेपर प्रॉपर पब्लिश होता है जर्नल में तो यू विल गेट 10 पॉइंट्स। सो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप ग्रोइंग, ऐसे ही थैंक आगे यू। बढ़ते रहो। थैंक शुभ यू मैम। शुक्रिया जी, थैंक यू। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, सपने देखो, यस, भरोसा करो, यू विल गेट इट। थैंक्स। यस मैम, थैंक यू।